the next chapter that we will be discussing will be the structural organization in animals. I have already told you about this chapter yesterday. We already saw some basic things related to this chapter, and I told you that the previous chapter it talked about human body in general at the cellular level. What are the cellular components? What are the various organelles present in cell? Prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell. Now moving ahead from the cellular level, हम थोड़ा higher level पे जा रहे हैं. हम अभी tissue level की बात कर रहे हैं. And with respect to this tissue, with respect to development or the structures of the tissue system. Yesterday we saw that in human body, human tissue system is basically containing 4 different types of tissues, starting with epithelial tissue, followed by connective tissue, then your muscular tissue, and finally the nervous tissue. Yesterday we have drawn that kind of a tree diagram, and I had requested you that if possible you should try to draw it at least twice. Okay, and I told you, okay, initially what is important is that you should by heart those names, all the names, what comes under which tissue, that you need to have that a very clear picture you have to have in your mind. Today we will start our discussion with respect to the epithelial tissue. Now, the epithelial tissue, generally it is found epithelial tissue is generally found lining the organs, covering the organs. मैंने आपको पहले ही बताया था, I had told you this last in the previous lecture only, that generally, like you see, during your school days, in many schools there is this compulsion that your notebooks as well as your textbooks are to be covered, okay, by that extra brown color cover or white color cover. Then there are now plastic covers that are available. So why you are covering a book? Because that extra layer of covering, it gives a kind of protection to the important content or to the important material of the book. It increases the shelf life of that book. Similarly, epithelial tissue, when it is lining and covering any of the organs of your body, naturally what is happening, this epithelial tissue, it is actually acting as a protective layer. It is providing protection. So we can say that epithelial tissue is protective in nature, but at the same time, in certain cases, it can also be involved in the processes of absorption and secretion. ये काम भी हो सकता है by the epithelial tissue. We'll go ahead, we'll see in detail how and where this is happening. Similarly, epithelial tissue tissue is made up of group of cells together. So here what we are saying, that when group of cells come together to form the epithelial tissue, those cells are compactly arranged. अब ये compactly arranged cells कैसे रहते हैं?
आपने उसके लिए नीचे, आप अभी जब आपके घर में बैठे हुए, व्हेन यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, यू शुड लुक डाउन ऑन योर फ्लोर. ओके, आपका फ्लोर जो है उस पे टाइल्स लगे हुए हैं. अलग अलग लोगों के घर में अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कलर के टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन इन टाइल्स का अरेंजमेंट देखिए, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथ ईच अदर. देयर इज नो स्पेस. ऐसा नहीं है कि एक टाइल है, फिर 3-4 सेंटीमीटर का गैप रखा है, फिर दूसरा टाइल लगाया हुआ है. दैट्स नॉट द केस. तो ये हमारे घर में हम जिस सरफेस पे चल रहे हैं, उस सरफेस पे टाइल्स का अरेंजमेंट और उनका पैकिंग कैसा है, दे आर ऑल्सो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. सिमिलरली the cells of epithelial tissue, they are also compactly arranged, and then they, because they are compactly arranged, there is very little or literally no space between two cells. ये दोनों cells अड़ोस पड़ोस के नेबरिंग सेल्स इतना एक दूसरे के नजदीक और करीब अटैच्ड है कि देयर इज हार्डली एनी स्पेस इन बिटवीन देम. दो सेल्स के बीच में के स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. एपिथेलियल टिश्यू में आइदर वो बहुत ही कम रहती है या एज गुड एज नो स्पेस इज देयर. ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर देता है, एंड दैट कंटिन्यूएशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे देन इट इज एबल टू परफॉर्म इट्स वर्क प्रॉपरली. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. आप सोचिए आपके बुक का कवर है, वो भी एक कंटिन्यूअस लेयर रहता है जो आपको बुक को कवर करता है. अगर आपने वो जो ब्राउन पेपर लगाया हुआ है, व्हाइट पेपर लगाया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक को या नोटबुक को कवर करने के लिए, वो बीच में अगर कहीं 4 जगह पे फटा हुआ रहा, अंदर के मटेरियल को भी डैमेज हो जाएगा उसकी वजह से. सिमिलरली हमारे ऑर्गन्स जब कवर्ड है इपिथेलियल टिश्यू से, दैट इपिथेलियल टिश्यू हैज टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर ओवर आवर ऑर्गन्स. देन दे आर एबल टू डू देयर फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन प्रॉपरली. At the same time, another important thing, that the cells contain very little, minimum, जो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जिसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वो मैट्रिक्स बहुत बहुत ही कम है. ये एक बात हमें पता रहनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, द सेल्स of epithelial tissue ये ध्यान दीजिए अभी, रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. This is another very crucial, very important point, in the sense that आप बाकी के अगर टिश्यूज की बात करेंगे तो बाकी के कहीं भी किसी भी टिश्यू में हम बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वर्ड यूज नहीं करते. समझ रहे आप? ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फाउंड ओनली ऑन द इपिथेलियल टिश्यू. मैं जब आपको फिगर दिखाऊंगा, हम कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी. ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है, जैसा अभी कैमरा में, वीडियो में आप मुझे शायद पूरी तरह देख नहीं सकते, बट आई एम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. मैं डायरेक्ट फ्लोर पे खड़ा नहीं हूँ, फ्लोर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खड़ा हूँ. ओके, तो ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म मुझे सबस्ट्रेटम दे रहा है टू स्टैंड. दिस प्लेटफॉर्म is my basement membrane. On that basement membrane I am standing. Similarly, this tissue, epithelial tissue is made up of a group of cells. तो ये अलग अलग group of cells जो है, इन सबके नीचे एक common platform जो है, that platform is basement membrane. And keep this in mind, basement membrane is found only in the epithelial tissue. ये पॉइंट्स प्लीज ध्यान में रखिए. एक बात बताता हूं मैं आपको अभी, नीट लेवल पे जो सवाल आते हैं अलग अलग प्रकार के, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, लाइक वन क्वेश्चन कैन बी दैट दे आर गिविंग यू 3-4 sentences, 3-4 statements within the question, and in between they are leaving certain spaces. उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्टिव लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया
कैपिटल ए, उन्होंने यहाँ पे लेस लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया बी। फिर सपोज यहाँ पे उन्होंने लिख दिया सी। सो दीज आर एम्प्टी स्पेसेस and they might ask this for fill in the blanks. So how the statement goes, that epithelial tissue performs the function of absorption, secretion and dash. Okay, there they have given A, तो they will, नीचे सवाल आएगा what do you mean by A, और फिर नीचे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ये एक प्रकार हो गया क्वेश्चन का, ये सवालों का एक प्रकार हो गया नीट लेवल पे। नीट लेवल पे दूसरा एक प्रकार क्या आता है, आपको पता है कि नीट लेवल पे जनरली दे आस्क यू अ क्वेश्चन एंड देन देयर यू हैव द ऑप्शन। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस फाइंड आउट विच इज ट्रू। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट और फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं, सपोज 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमको। पहला स्टेटमेंट है एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। ओके, दूसरा epithelial tissue is not concerned with protection, ये देखिए गलत स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, a very large amount of intercellular space, very large amount of intercellular space is found between the cells of epithelial tissue, तीसरा स्टेटमेंट भी मैंने गलत बताया, फॉल्स बताया आपको। चौथा स्टेटमेंट, that epithelial tissue is filled with large amount of matrix, ऐसा चौथा स्टेटमेंट रह सकता है। तो 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट फॉल्स है, 1 सही है। पर आपको ये आंसर अगर पता होना चाहिए तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। अभी गड़बड़ क्या होती है स्टूडेंट्स का, आप अगर जस्ट सुपरफिशियली ये रीड करेंगे तो आपको मैट्रिक्स वर्ड दिखाई देता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड दिखाई देता है, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देता है, आप उतने ही वर्ड्स पकड़ लेते हैं, उनके माइन्यूट डिटेल्स आप पकड़ते नहीं, और फिर इस प्रकार के सवालों में आप गड़बड़ कर देते हैं। या फिर कल ऐसा भी हो सकता है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, 3 गलत स्टेटमेंट दिए थे, 1 सही दिया था। कभी कभी उल्टा कर देते हो, वो आपको पूछेंगे इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो उसमें वो क्या करेंगे, 3 सही स्टेटमेंट देंगे और 1 गलत स्टेटमेंट देंगे। दे कैन गो आइदर वे, दे हैव दैट इंडिपेंडेंस। या फिर कभी कभी वर्ड जो यूज किया जाता है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट और फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जनरली मैं स्टूडेंट्स को एक क्या सजेशन देता हूं कि आप जब क्वेश्चन देखने के बाद आप जब आंसर्स की तरफ देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ देखते हैं इन प्रकार के सवालों में, तो आपने हाथ में पेंसिल लेके क्या करना चाहिए, आपने पहला ऑप्शन देखना चाहिए। क्या है पहला ऑप्शन, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये तो गलत ऑप्शन है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐसा ऐसा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है, ये ऐसा ऐसा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। चौथा क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। आपने ये ऐसा फॉल्स ट्रू ये साइड में पेंसिल से लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, सपोज सवाल इस प्रकार से आया है कि फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, ओके, फॉल्स भी नहीं, ट्रू ही पूछा गया है, सपोज करेक्ट ही पूछा गया है सपोज, तो क्या होता है, मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, मुझे पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूं, मुझे पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मैं तीसरा पढ़ने लगता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि ओरिजिनली क्वेश्चन क्या है, आर दे टेलिंग मी टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैं भूल जाता हूं। तो क्या होता है, मैं फिर से सवाल की तरफ जाता हूं, फिर मुझे ध्यान में आता है कि अच्छा इन्होंने तो सही स्टेटमेंट पूछा है, इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, फिर मैं भूल जाता हूं कि अरे ये पहले दो क्या थे, या दोनों में से एक में गड़बड़ में आ जाता हूं कि अरे मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे शायद फिर से रीड करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप शायद सही जवाब तक पहुंच ही जाएंगे,
लेकिन इसमें देखिए आपने टोटल टाइम कितना वेस्ट किया, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए आज तक हमने कभी टाइम के बारे में बात नहीं किया, बट आई एम हैप्पी कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इसको थोड़ा 2 मिनट हम बाजू में रखेंगे। देखिए टाइम का हमें क्या दिया गया है कि वी आर हैविंग 90 प्लस 45 प्लस 45 क्वेश्चंस फॉर नीट। 90 सवाल है बायो के, और ये 45 प्लस 45 है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ये हो गए हमारे 180 क्वेश्चंस, एंड ये 180 क्वेश्चंस you have to finish in 3 hours. Now ideally the good thing will be that biology है, physics है और chemistry है। आप क्या करो, पहले बायो का पेपर सॉल्व करो पहले 1 घंटे में, फिर फिजिक्स सॉल्व करो 1 घंटे में, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करो 1 घंटे में। 3 घंटे हो गए आपके। ओके, जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले बायो करते, फिर केमिस्ट्री करते और लास्ट में फिजिक्स की तरफ आते, क्योंकि फिजिक्स पे उनका विशेष अफेक्शन रहता है। ओके, फिजिक्स जनरली स्टूडेंट्स हु कम टू बायोलॉजी they find physics a bit difficult, so naturally they go towards physics at the end. Okay, last hour they generally they give to physics. This can be an ideal scenario 100%. Okay, but let me tell you, मैं खुद पहले यही प्रिस्क्राइब करता था स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट्स के जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे हमें ध्यान में आया कि दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर। टाइम मैनेजमेंट ऐसा अच्छा नहीं है। आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर इज दैट आपने बायो का ये 90 क्वेश्चंस जो है, you should try to finish it in approximately or less than 45 minutes. This is very surprising, but that is the way you should do it. Okay, because you see, ultimately you are giving 1 hour, you are planning to give 1 hour to physics, but as you understand better now, physics is not my subject, so I don't understand it much, but what I understand is, दो आपको फिजिक्स में भी ऐसा ही सवाल आने वाला और नीचे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लुकिंग एट सम क्वेश्चन इन फिजिक्स, आपको रफ वर्क में वो सॉल्व करना पड़ता है और नियरेस्ट पॉसिबल आंसर को टिक करना पड़ता है। यू आर गोइंग टू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, एक्चुअली यू शुड ट्राई टू सॉल्व द बायोलॉजी पार्ट एंड द केमिस्ट्री पार्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स इसका मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बहुत रैपिडली सॉल्व करने में आपकी गलतियां नहीं बढ़नी चाहिए, बिकॉज आई होप यू रिमेंबर वेन एवर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक यू आर लूजिंग 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, समझ रहे हैं आप? ओके, मुझे 2 साल पहले की बात याद आ रही है। 2018 में देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु वाज टॉपर इन नीट, and some Kumari, I forgot her name, but she scored 360 out of 360 in biology. यानी all the 90 questions that she solved in biology, all the 90 were correctly solved. And solving 90 correct questions in biology is not a big deal. If you are working really very honestly and consistently, you can certainly have very high scores in biology. But what surprised me is that I was reading her interview, and in her interview she said that she solved these 90 questions of biology in less than 42 minutes. मैं तो यहाँ 45 बोल रहा हूँ. She solved the biology paper 90 questions in less than 42 minutes. Even she said कि because I solved it very rapidly, I got enough amount of time for physics and chemistry. And let me tell you this,
Probably I have told you this during the initial previous chapters also when I was introducing biology. A general consensus, बच्चों का एक जनरल साइकोलॉजी क्या रहता है, देखिए कि all the students who come for NEET, almost 99% of those students, they choose biology because they are afraid of mathematics. ओके कई बार ठीक है मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है इसलिए मैं बायो की तरफ जा रहा हूं, ये एक बात हो गई, लेकिन उसमें कहीं तो भी एक हिडन एजेंडा ये भी रहता है कि मैथ्स मुझे बहुत अच्छा नहीं आता, आई एम अफ्रेड ऑफ मैथ्स, आई डोंट लाइक मैथ्स, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स। और क्योंकि आपको, आप में से काफी लोगों को क्योंकि मैथ्स का डर है, मैथ्स डिफिकल्ट जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज फिजिक्स एंड मैथ्स आर को रिलेटेड एटलीस्ट एट 11th and 12th लेवल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस काफी सारे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर नीट, स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द पीसीबी ग्रुप, दे डोंट शो मच लाइकिंग फॉर फिजिक्स। तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक साइकोलॉजी क्या रहता है कि मैं 2 साल में बायो का इतना सारा अच्छा पढ़ाई करूंगा, मैक्सिमम मार्क्स में बायो में लेके आऊंगा, केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स में केमिस्ट्री में लेके आऊंगा, ताकि फिजिक्स में थोड़ा मैं ढीला ढाला भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली ये साइकोलॉजी रहती है, ये एटीट्यूड रहता है नीट वाले स्टूडेंट्स का। बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ करेक्ट एटीट्यूड, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड almost 99% of the students come with the same attitude that I am very good in biology, I'll really work hard in biology, I'll work hard in chemistry also, so that I can have some ease with respect to the subject of physics. And that means somewhere you are deciding that it is okay if I lose some marks in physics, and that is not good. Let me remind you again, there are roughly 60,000 seats of MBBS all over India. 60,000 MBBS. Okay, ये approximate बता रहा हूँ, I'm not telling you the exact number, but approximately 60,000 seats, for which this year 2020 almost roughly 16 लाख बच्चों ने उन 60,000 MBBS सीट्स के लिए नीट एग्जाम देने का तय किया है। एंड इफ यू सी द रेशियो, आई हैव टोल्ड यू लॉन्ग अगो दैट रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:25, यानी एक सीट के पीछे 25 बच्चे भाग रहे हैं। और जब एक सीट के पीछे 25 बच्चे भाग रहे हैं तो आपका ये एटीट्यूड मुझे तो बड़ा डरावना लगता है कि फिजिक्स थोड़ा कम मार्क भी मिले तो चल जाएगा, मैं मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करूंगा बायो में और केमिस्ट्री में। दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ऑन द कॉन्ट्ररी, I am a person who always tells the students and the parents that the actual key for the entry to MBBS is physics. It is not biology, it is not chemistry, it is physics. Because the students who are really good in their studies, they are anyway going to score wonderful marks in biology and chemistry. Where they go wrong, where they go lethargic in their attitude is with respect to physics. आप में से जो फिजिक्स भी अच्छा करेगा वो ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने वाला, ये ध्यान में रखिए। So you need to be serious of all the 3 subjects. You think of the NEET exam as an auto rickshaw. आगे का पहिया बायोलॉजी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आवर फेवरेट, लेकिन पीछे के जो 2 पहिए जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। अभी आप ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकते कि मैं 2 पहियों पे ही रिक्शा चला लूंगा, तीसरा पहिया रहा नहीं रहा, पंक्चर रहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई एम गोइंग टू हैव अ स्मूथ राइड, आई एम गोइंग टू हैव एन इजी राइड। और मैं तो रेस में भाग रहा हूं, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं सेकंड आ जाऊंगा, मैं टॉप 3 में आ जाऊंगा विथ 1 पंक्चर्ड टायर। इज दैट पॉसिबल? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट्स नॉट पॉसिबल।
तो you need to, and keep this in mind, ultimately it is about the psychology. Whenever you are sitting for physics, आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे होंगे, आप आपके डीपीपी या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं फिजिक्स का. प्रॉब्लम क्या होता है, एज यू कीप दैट टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक इज दिस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. सी, नथिंग इज इजी, नथिंग इज इजी. टिल यस्टरडे अगर मैंने आपको इपिथेलियल टिश्यू के बारे में सवाल पूछा रहता तो वो उसका जवाब आपके पास नहीं था, क्योंकि कल तक इपिथेलियल टिश्यू भी डिफिकल्ट था. आज हमें इपिथेलियल टिश्यू के बारे में काफी कुछ मालूमात हो गई है. आप कल टिल यस्टरडे आप जितना अफ्रेड थे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, आज आप उतना अफ्रेड नहीं है. और आप थोड़ा सा अगर इस पे काम करेंगे तो आपका पूरा डर निकल जाएगा. अभी यही अप्रोच हम हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए और डेरिवेशंस के लिए क्यों ना रखें. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक आई नो माय कलीग्स हु आर टीचिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो ना सिर्फ आपको डेरिवेशन सॉल्व कैसे करने वो बताने वाले, न्यूमेरिकल्स कैसा सॉल्व करने वाले वो बताए, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू वंडरफुल ट्रिक्स, सो दैट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो सवाल सॉल्व करने के लिए रेगुलरली 5 मिनट्स और 8 मिनट्स लगने चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन लेस देन 1 मिनट. बट इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. You need to tell yourself कि okay, this is a difficult subject, that's not an issue, but I am going to do it. I know how to do it. That attitude is the first step to shine and understand the part of physics and chemistry. Please keep this in mind. Okay, so we were basically talking about the types of questions that are expected, है ना? Okay, and I told you that you cannot, I mean ideally 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, तो फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को 1 घंटा और बायो को 1 घंटा, ऐसा लगभग हमारा कैलकुलेशन रहता है. बट अगले 2 साल अगर आप ठीक से काम करेंगे, अब तक आपका और मेरा इंटरेक्शन इन पर्सन नहीं हुआ है, अब तक हमारे एज सच क्वेश्चन आंसर्स का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन लेट मी टेल यू, एक बार आप अच्छा पढ़ाई करके अगर बायो के पेपर को बैठे तो लेट मी टेल यू कि 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू डोंट रिक्वायर 90 मिनट्स, यू डोंट इवन रिक्वायर 60 मिनट्स, 1 घंटे की भी जरूरत नहीं. आई प्रॉमिस यू दैट. सिर्फ आपने उतना उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कंसिस्टेंट वर्क बड़ा जरूरी है उसमें. We were talking about the way questions are being asked. कभी कभी in the form of fill in the blanks. ये इतने सारे points in the form of fill in the blanks आ सकते हैं. इतने सारे points in the form of इसमें से tell or find out the true statement, find out the false statement, find out what is correct, find out what is incorrect. Okay? And if we want to solve our question paper in minimum time, हमने ये करना चाहिए कि इस प्रकार के जो सवाल रहते ट्रू और फॉल्स या फिर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, इन सवालों को हमने सॉल्व करते टाइम ऑप्शंस के आगे हमारे रेफरेंस के लिए, हमें समझ में आए इसलिए हमने लिख के रखना चाहिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा ट्रू है. और फिर हमने इवन आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, इफ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कम्स, ओके, कि गिवन बिलो इन द 4 ऑप्शंस there are 4 statements with respect to epithelial tissue, among them find out the incorrect statement. अगर कल इस प्रकार का सवाल आया तो मैं जनरली बच्चों को यही बताता हूं कि ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट इस प्रकार के सवाल आए तो सवाल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है उन्होंने क्या ढूंढना है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, या फिर आपको अगर उन्होंने लिखा है फाइंड आउट विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, आपने उस वर्ड को अंडरलाइन करके रखना चाहिए. और फिर नीचे ऑप्शंस चेक करते टाइम आपने उसके आगे लिखना चाहिए इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. अंडरलाइन इसलिए करके रखना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑप्शंस तो देख रहे हैं, आप उसमें से ढूंढ रहे हैं करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, लेकिन नीचे के आंसर्स पढ़ते पढ़ते, ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम मेन सवाल ही भूल जाते कि अरे उन्होंने कौन सा मांगा है, आर दे आस्किंग टू फाइंड अस करेक्ट आंसर और आर दे आस्किंग टू फाइंड अस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसलिए क्वेश्चन में भी आपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड
what they are expecting from us, are they asking us for a correct statement or an incorrect, वो चीज भी आपने क्या करके रखना चाहिए, अंडरलाइन करके रखना चाहिए. Are you getting this? Okay, too much of time is going on. Anyway, I think I'll stop here actually. ठीक है, I'll stop here today. We saw some basic components related to the epithelial tissue. We could have finished much more, but that's fine. I think this part was more important. Understanding the need examination and that right attitude is very necessary. Don't be afraid. देखिए डर सबको लगता है. Okay, I'll tell you, when I was a student, when I used to go into the lecture hall or when I used to go into the examination hall and I used to sit on my bench with that question paper and answer sheet in front of me, even I used to have those anxieties. और मैं क्या करता था, मैं गाने गुनगुनाता था. That was my way of releasing the stress. कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि they keep chatting with their friends. That is okay. Okay, कुछ हद तक, जब तक जो इन्विजिलेटर आए हैं, एग्जामिनर आए हैं, जब तक till things are okay in the examination hall, आपने थोड़ा धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ बात वगैरह किया तो ठीक है. But once the examiner says shut up, you better shut up. कुछ लोगों का मैंने देखा है कि लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हो. लास्ट मिनट रीडिंग का किसी को भी अब तक दुनिया में, हिस्ट्री में किसी को भी अब तक लास्ट मिनट रीडिंग का फायदा नहीं हुआ है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, क्योंकि लास्ट मिनट में यू आर जस्ट रीडिंग इट, इट्स नॉट गेटिंग इम्प्रिंटेड इन द ब्रेन. उसके लिए इफ यू वांट द थिंग्स टू बी प्रॉपरली फिटेड इनटू योर ब्रेन, यू हैव टू रीड योर पार्ट रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली. ये टर्म देखिए, मैंने शायद आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक बार बताया था. हार्ड वर्क. मैं आपको हार्ड वर्क बताता हूं. मैंने कंपनी में काम करने वाले ऐसे लोग देखे हैं जो कंपनी में 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं एवरी डे विथ ओनली 1 डे ऑफ इन अ वीक. हफ्ते में एक दिन छुट्टी, यानी एक महीने में 4 या मैक्सिमम 5 हॉलीडेज रहते हैं उनको. 20-25 दिन एवरी डे दे आर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 hours. And after working 8 to 10 hours per day, और इस प्रकार से वो you'll be surprised to know that these people, they get paid somewhere around 5,000 to 8,000 rupees. मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, ठीक है, पर आप सोचिए एक बंदा 10 घंटे रोज काम कर रहा है, 25 दिन अगर वो काम कर रहा है, यानी दैट बिकम्स 250 hours. So someone who is working for 200 hours, 250 hours, what are they getting paid? Hard work. लेकिन ये हार्ड वर्किंग लोग जो है, इनके ऊपर इनका जो मैनेजर रहता है, मैनेजर might be working for 6 hours per day, again for 6 days per week, but the manager gets paid somewhere around 50,000 to 80,000 per month. अभी कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि मैनेजर हार्ड वर्क नहीं करता, लेकिन मैनेजर इज ऑल्सो ऑनेस्ट एंड सिंसियर, बट what the manager is doing is a smart work. समझ रहे आप? ओके, देखिए, our country is a cricket loving nation. We worship our cricket players as gods. क्रिकेट का ध्यान में रखिए. जैसा अभी देखिए, currently I think the toast is Virat Kohli. Probably he is probably the most famous player under India team. Do you think that since past 50 days
When everyone was under lockdown, when Mr. Virat Kohli was also under or is currently under lockdown, do you think in past 50 days, all he is doing during his quarantine work is eating and sleeping, going to the gym once in a while and making the TikTok videos? Do you think that's the only work he's doing? That's not the case. Do you think any of these players, not just with cricket but with any game, do you think कि once the tour gets announced, एक बार अगर उनको पता चल गया कि ठीक है बाबा 1 जून को हमें इस टीम के साथ खेलना है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि 1 जून को एक बार उनका शेड्यूल शुरू हो गया तो वो ठीक है 1 जून को है ना शेड्यूल, तो हम क्या करेंगे, हम 26-27 मई से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और एकदम रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, हम रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे? आपको लगता है ये लोग ऐसा काम करते होंगे? क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा काम शुरू किया, दे विल नेवर सक्सीड इन एनीथिंग. These players, they not just go for hard work, but they go for smart work. Matches है या नहीं है, it doesn't matter to them. They know that they have to maintain themselves. Okay, that's why whether there is any match or not, every day they will do some work. पिछले 50 दिनों में आप सोशल मीडिया में पूछिए मिस्टर विराट कोहली को, he will certainly tell you कि even in the lockdown, every day 2 hours 3 hours he is hitting the gym, he is doing his practice things. सक्सेसफुल होने के लिए यही बात है. ओके, सी सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स. ये एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द रेगुलर थिंग्स डिफरेंटली. टिल स्टैंडर्ड 10th आपका और मेरा और मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा था? एग्जाम डिक्लेयर हो गया है, 1 जून को एग्जाम है, 26-28 तारीख से हम भरपूर पढ़ाई करेंगे. अभी साल भर पढ़ाई नहीं किया, सडनली पढ़ाई करने लगे तो ऐसा 6 घंटे बैठने में बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, नींद आ रही है, सिर दुख रहा है, अनईजी लग रहा है. बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली सडनली एग्जाम टाइम पे ही बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से. सी दैट इज नॉट करेक्ट. एंड स्पेसिफिकली नाउ आप जिस लेवल तक आ गए हैं अभी, नाउ एट 11th and 12th, आप जेई दे रहे, नीट दे रहे, सीईटी दे रहे, इट डजंट मैटर. व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ फ्रॉम यू इज स्मार्ट वर्क. रोज पढ़ाई कीजिए. आप ये आपको जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं, आप वो वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियोस के अलावा आपने फिलहाल एटलीस्ट 2, 2.5, 3 घंटे रोज पढ़ाई करना चाहिए. ये कंसिस्टेंट वर्क करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क करते रहेंगे. अभी से अगर आप ये 2-3 घंटे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो सडनली बाद में आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देयर इज नो नीड फॉर हार्ड वर्क. सी हार्ड वर्क करने वाला गधा हो गया है आजकल, वो पहले से ही गधा था. ठीक है, शेर 12 घंटे 10 घंटे काम नहीं करता, शेर 10 मिनट के लिए उठता है, लेकिन जब वो उठता है वो उसका काम ऐसे करता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, 10 घंटे 12 घंटे काम करने वाला हार्ड वर्किंग डोंकी इज नॉट द किंग ऑफ द जंगल. स्मार्ट वर्क करने वाला लायन जो है, ही इज द किंग ऑफ द जंगल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई. समझ रहे हैं आप? ओके, एनीवे अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रीड एवरी डे. जैसा अभी आज ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हुआ है, इतना पार्ट अगर आपको टेक्स्ट बुक में मिल रहा है, पढ़ लीजिए इसको. मैंने जब एक्सप्लेन किया आपको वीडियो में, आपने वो, आई होप आपने वो ठीक से पढ़ा होगा. आप, आई होप कि आप जब ये सुन रहे थे तो आपने इनमें से इन चीज़ों को लिखा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन किया होगा. समझ रहे हैं आप? आप जब टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, मैंने ये बहुत पहले बताया था, अभी फिर से मुझे स्ट्रेस करना है, आप जब एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, सपोज ऐसा 5-8 लाइंस में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया गया है, तो आपने क्या करना चाहिए, टेक्स्ट बुक में जब आप रीड कर रहे हैं तो आपने एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट पढ़ना चाहिए. पढ़ते पढ़ते हाथ में पेंसिल लेकर इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, प्रोटेक्टिव, एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बेसमेंट मेम्ब्रेन, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इन चीजों को आपने अंडरलाइन करना चाहिए. फर्स्ट रीडिंग में पेंसिल से इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना चाहिए इमीडिएटली.
सेकंड रीडिंग करना चाहिए, टेक्स्ट बुक की बात चल रही है, इमीडिएटली सेकंड रीडिंग करना चाहिए, फिर से सभी बातें पढ़नी चाहिए, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? अंडरलाइंड चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ओके, हम जब क्लासरूम में मिलेंगे, एंड आई होप दैट हैपन्स सून, हम जब क्लासरूम में मिलेंगे, ये बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार दोहराने वाला हूं, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे of learning at the level where you are going now. 38 चैप्टर्स का आपको पढ़ाई करना है सिर्फ बायो का, 11th प्लस 12th, क्योंकि नीट में 11th और 12th दोनों आने वाले, तो 11th के 22 और 12th के 16, ऐसे टोटल 38 चैप्टर्स आपको ध्यान में रखना। दैट इज टू मच ऑफ मटेरियल। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात भी नहीं निकाला अब तक, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। मुझे आता है इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं वेरी इजी, आपके लेवल के स्टूडेंट्स को आता है इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज वेरी इजी, बट यू हैव टू परफॉर्म व्हाट स्मार्ट। समझ रहे हैं आप? स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे, मुझे पता है। वी स्टॉप हियर टुडे, थैंक यू वेरी मच।